आइए बच्चों, हम लोग एंट्री पास करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप क्वेश्चन नोट करिए हमारे साथ साथ। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख, देयर PSR profit sharing ratio 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share. C brings 2 lakh for his capital and 50,000 for his share of premium for goodwill. Pass journal entry. This is an important question. So at first, I have told you in our earlier classes that if new partners are admitted, then in this situation, there is two way when new partners brings his share of capital and premium for goodwill, both amount in cash. And in the second case, I have told you if new partner brings only his share of capital and nothing for goodwill. So in this question, you can clear that. It is very clear that you can clear it. What? C is new partner and C is bringing only and only capital or premium for goodwill both. Sir, here C is bringing his capital for rupees 2 lakh and he is also bringing his share of goodwill 50,000, premium for goodwill 50,000 in cash. So in this question you can see new partner C brings his share of capital and amount of premium for goodwill both in cash. So we have to follow the concept of cash. So at first we have to pass journal entry, bank account debit to C's capital account and to premium for goodwill account, and narration capital and premium for goodwill brought by C. ठीक है? So listen. Now here we have to fill the amount also. So at first you can fill the amount of capital. He brings 2 lakh for his capital, and then after you can fill the amount of premium for goodwill, that is 50,000, and total he brought 2,50,000. It's a first entry, and then after either said or not in the question. Okay, you have to pass second entry for the distribution of premium for goodwill among the all partner in their sacrificing ratio. For that we have to pass entry what? Premium for goodwill account debit to sacrificing partners. Sacrificing partner is what? All partner. They will sacrifice their space to the new partner. In which ratio they will sacrifice? They will get the premium for goodwill amount. So just write down to A's capital account and to B's capital account. Okay, here now you have to fit the amount. So premium for goodwill is about 50,000. It will be distributed among the whole partners. It means you can say sacrificing partner in their sacrificing ratio. Narration will be there. Premium for goodwill transfer to sacrificing partner in their sacrificing ratio. So at first here students we have to find out the sacrificing ratio. Then after we can distribute this amount in their sacrificing ratio. So this is the formula. Just see, I am going to tell you here. What is the formula? SR
sacrificing ratio equal to old ratio minus new ratio. Okay students, then at first find out the sacrificing ratio. So for that, at first for A, old ratio what? A and B, their ratio 3:2. 3:2 means 3 plus 2, 3 by 5, 2 by 5. In this way you can find out. So A ratio, old ratio will be 3:2, 3 by 5. 3 plus 2 means 3 by 5, 2 by 5. 3 by 5 minus their new ratio. Sir, in this question, new ratio is not given. Okay, no problem is there. So at first you have to calculate new ratio, and then after you can use this formula. Okay, then just look here. Now I am going to tell you calculation of new ratio. New ratio. Okay, so just write down, just watch here, calculation of new ratio. So here this is the assumed basis. I have told you in our earlier classes how to calculate the new profit sharing ratio. There is a three way: assuming basis, acquired basis और surrender basis. I think you have कंसीडर ऑल दिस थिंग्स. आपने मेरी लास्ट क्लास देखा होगा बच्चों. हमने अपनी लास्ट क्लासेस में न्यू रेशियो निकालना सिखाया है. अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इस क्लासेस की बैकअप वीडियो क्लास की यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है. अभी भी आप वहां जाकर उसको भी एक बार देख सकते हैं. अदरवाइज यहाँ आएगा आपको, फिर हम बता भी देते हैं. ये एसयू बेसिस पर है. इसमें क्या करना होगा न्यू से निकालते वक्त, सपोज टोटल profit of the firm equal to 1, and then 1 minus 1 by 4. पूरे प्रॉफिट, फर्म की प्रॉफिट हमने 1 मान लिया और 1 में से एज्यूम कर लिया, और 1 में से 1/4 जो नया पार्टनर आ रहा था 1/4 को लेस कर लीजिए आप. क्या बचा? 3/4. ठीक है, 1 में से 1/4 माइनस हुआ, बचा 3/4, एंड दैट इज द शेयर ऑफ A and B. यानी A और B का शेयर होगा. एंड देन आफ्टर लुक हियर, तो A का शेयर कितना होगा? 3/4 में A का शेयर क्या रेशियो? A सर 3:2 मतलब 3/5. और B का क्या होगा सर? B का 3/4 में इंटू 2/5. सॉल्व इट. इसको सॉल्व काटिए, कितना आएगा? ये आपका आ गया 9/20 और ये आ गया 6/20. Okay, and now see, you know very well this is the ratio of 1/4. So for getting new ratio we have to take the LCM, और अगर आप LCM लेना चाहते हैं तो LCM निकाल सकते हैं, और अगर आप LCM नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आसान रास्ता होता है. आप इन तीनों को इक्वल करें, तीनों डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए. यानी ये 1/4 है यहाँ पर, ये 20 है, 20 दोनों का AB का है, तो इस 20 के बराबर करना होगा 4 को. तो क्या करेंगे? 5 से इंटू कर देंगे. 5/5 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 5/5 आपस में कट जाता है तो खाली इसको रेशियो बनाने के लिए हम कर रहे हैं. ऐसा काम नहीं है तो भी बात बराबर है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 5/20. इट मीन्स योर आंसर विल बी, योर न्यू रेशियो विल बी 9:6:5. नीचे का डिनोमिनेटर 20 अगर बराबर हो गया तो ऊपर का 965 ये आपका आंसर होगा. दिस इज द शॉर्टकट तरीका. ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इसका एलसीएम से तो आप एलसीएम ही ले सकते हैं, तो टाइम वेस्टिंग होगी, टाइम किल होगा. इसलिए शॉर्टकट तरीका ये है कि 2 आपका 20 आ चुका है तो तीसरे वाले को भी क्या कर लीजिए, 1/4 था उसको 20 में कन्वर्ट कर लीजिए. बात वही पड़े, क्योंकि आप 5 20 काटेंगे 1/4 ही आ जाएगा. तो भाई मिलाने के लिए हमने 20 कर लिया. अब 20 दोनों बराबर हो गए. जब 20 दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होगा? इसका ऊपर का 965 क्या बन गया? आपका रेशियो बन गया. ये आपका रेशियो आ गया. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? Now we have to find out the sacrificing ratio. Now listen. Sacrificing ratio means what is the formula of sacrificing ratio? Sir, old ratio minus new ratio. So 3/5 minus new ratio. What is the 965? Means what? 9 6 15 5 20 9/20. So minus 9/20. And if you talking about the B, then you can say B का आपका आ जाएगा 2/5 minus 2/5 minus ratio 6/20. Now solve it.
नाउ सॉल्व इट एंड नाउ टेल मी वेरी फास्ट। मेरे साथ साथ आप भी बताइए फट से कितना आ रहा है आपका, इसको सॉल्व कीजिए, अभी मान मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका एलसीएम ले लीजिए, 20 आ गया और 12 माइनस 9 एंड 3/20, इसका लीजिए एलसीएम, 20 आया और 5 into 8 माइनस 6 मीन्स 2/20। देखिए बच्चों एसआर भी क्या है, 3/20 2/20, दोनों क्या है 20/20 है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं, इसका आपका आंसर आएगा एसआर इक्वल टू 3 और 2 यानी 3:2। ये आपका क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आ चुका है। लेकिन वन थिंग यू हैव टू सी वॉट, एक बात आपको बच्चों ध्यान देना होगा। देखिए सर हम लोग को न्यू रेशियो हमने निकाला, ये नीचे वर्किंग किया, न्यू निकालने के बाद ओल्ड माइनस हमने न्यू किया, उसके बाद हमारा क्या 3:2 आ गया। लेकिन सर जरा ध्यान दीजिए, जो हमारा ओल्ड रेशियो था वो भी क्या था 3:2 ही था। यानी कि ओल्ड रेशियो 3:2 था, हमने न्यू रेशियो निकाला, निकालने के बाद ओल्ड माइनस न्यू किया तो भी क्या आ गया 3:2 फिर आ गया। यानी कि ओल्ड रेशियो जो था वही वापस फिर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो रूप में आ गया। देख रहा बच्चे, आपने देखा ना आपने, तो यही ध्यान देने की बातें हैं। अब आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको, क्या देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में एज्यूम बेसिस पर रेशियो निकालना हो, कुछ न कहा हो, अगर आपको एज्यूम बेसिस पर, ध्यान दीजिएगा, एज्यूम बेसिस पर आपको नया रेशियो अगर निकालना हो तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं कि ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं और हम ये न्यू रेशियो निकाल के एसआर रेशियो, ये दोनों काम हम नहीं करते हैं। इन दोनों काम करने का टाइम बचता है हमारे पास और सिर्फ एक नोट हम लगाते हैं एग्जाम में, अपने क्वेश्चन पेपर आंसर शीट पर एक नोट लगाते हैं, लिख देते हैं देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग न्यू रेशियो, सो ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बात हमने आपको पहले भी बताया था, बट अभी सामने क्या कर दिया, आपको प्रूफ भी कर दिया कि अगर इसको काम न करें और ओल्ड रेशियो को ही 3:2 को ही ओल्ड रेशियो को ही क्या मान ले, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग डाउट ऐसा क्यों मान लें, ठीक है, आपने अगर नहीं मान चाहते हैं सॉल्व कीजिए। आप जब सॉल्व करेंगे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू निकालने के बाद फिर ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। देखिए घूम फिर के फिर क्या हो गया, वही आ गया। इसका मतलब कि अगर हम इसको ना भी निकाले, ये दोनों काम ना भी करें, तो भी क्या होगा, मेरा आंसर सही आने वाला है और मार्क्स भी हमारे नहीं कटेंगे। बस हमारा नोट्स लगाना होगा हमको कि ओल्ड रेशियो को हमने क्या मान लिया है, एसआर एज्यूम कर लिया है, ट्रीट कर लिया है, क्योंकि न्यू रेशियो रिगार्डिंग कुछ कहा नहीं है क्वेश्चन में। इसलिए क्योंकि न्यू रेशियो में क्या निकाला था, सपोज करके ही निकाला था हमने, इसीलिए वही आ जा रहा है। अगर सपोज न करना होता तो चेंज हो जाता। यानी क्वेश्चन में अगर आपको न्यू रेशियो भी दिया हो और साथ साथ ओल्ड रेशियो भी दिया हो और साथ साथ न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दे दे, अगर कि नया पार्टनर जब आया तो ओल्ड रेशियो भी मालूम हो आपको और न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दे दिया हो, इन दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इफ new ratio is not given, only old ratio is given and assume basis is there, that's in this situation no need to solve the calculate new ratio and no need to solve or calculate sacrificing ratio. You have to pass entry and treating just old ratio will be treated as सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यह आपका ओल्ड रेशियो क्या मान लिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया जाएगा। चलिए थोड़ा और क्या कर लेते हैं, इसको एंट्री हम लोग फिट कर लेते हैं, अमाउंट फिट कर लेते हैं। सो 3:2 यानी ओल्ड रेशियो भी है, वही मेरा एसआर भी है और निकाल करने के बाद भी वही मेरा आ रहा है, प्रूफ भी हो चुका है। तो आइए इसको आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम फिट करते हैं, अमाउंट फिट करिए। तो 50,000 को बांट दीजिए, यानी कि इफ आप चांस काटना चाहते हैं तो आप 50,000 इंटू 3/5 एंड 50,000 इंटू 2/5 कितना आता है, काटिए, 5 से कट जाएगा ये, तो 30,000 30,000 एंड 20,000 आ गया। आप यहाँ तो भर दीजिए 30,000 एंड 20,000, यानी कि ए ने जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो नहीं सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल सी लाया, वो ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है आपका। इसमें हमने आपको बताया कि नया पार्टनर फॉर्म में आता है और गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा दोनों पैसा कैश में लाता है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या उसकी जनरल एंट्री होगी, ये आपके सामने है एंट्री करने के लिए। आप एंट्री नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप। ये रहा आपका ऊपर का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा अगर हम कहें, अगर
कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और क्वेश्चन नोट हमने करा दिया। ये भी 2 पार्टनर थे, उनका रेशियो 2 था। सर जो इसमें 4 लाख और 3 लाख कैपिटल दिया हुआ है बेटा, ऐसा कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया था आप, जो पूछा गया है रिक्वायरमेंट हमारी नए पार्ट से रिगार्डिंग थी, तो हमने क्या किया, इनका लिया। तो वो नया पार्ट जब फॉर्म में आया वो 2 लाख कैपिटल लाया और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, ठीक है। तो पहले इंडियन पास कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद 2 लाख रुपए भर दिया कैपिटल में, 50,000 प्रीमियम भर दिया, ये 2,50,000 मेरा बैंक अकाउंट में आ गया। एंड देन आफ्टर सेकेंड एंट्री पास किया हमने, either set or not in the question, we have to pass this entry. Premium for goodwill account debit to capital S capital or to BIS capital. It means what? 30,000 and 20,000. कैसे आया ये बेटा? इस एंट्री को हमने पास किया, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये कैसे आता है? इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने किया, लेकिन आप चाहें अगर तो ओल्ड रेशियो, क्योंकि एज्यूम बेसिस पर था निकालना, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम करता है, निकालो तो भी वही आता है। देखो हमने निकाला, हमने पहले इसका न्यू रेशियो निकाला और न्यू रेशियो निकालने के बाद जो मेरी वैल्यू आई उसको हमने क्या कर लिया, फिट किया फॉर्मूले में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया तो मेरा एसआर आया, और एसआर भी क्या आ गया, वही आ गया जो ओल्ड रेशियो था। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम हो गया हमारा। एनी प्रॉब्लम? उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसमें नया पार्टनरशिप कैपिटल लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाएगा। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे आपको अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क फ्रॉम मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल आंसर यू, आई विल टेक योर ऑल क्वेरी, और आई विल tomorrow I will take the doubt removal class. I will take the live class on Google Meet. On that you can ask your query, you can ask your doubt, and you can clear your doubt. If you at first just watch this and note down all this entries and try to understand. अगर आपका समझ में आया तो ठीक, और नहीं समझ में आता है, अभी भी कोई उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बट अभी भी कोई पर्सनल क्वेरी आपकी होगी तो हम कल डाउट रिमूवल क्लास लेंगे, उसमें हम आपकी क्या कर लेंगे, क्वेरी आपकी लेके कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते ही रहिए, अपना भविष्य को और मजबूत बनाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।